کے پی کی بات کرتے تھے وہاں آپ یونیورسٹیز کا فنڈ کم کر رہے ہیں, آپ وہاں یونیورسٹیز کے فنڈ کو کاٹ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا کے پی میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کا جو حشر کیا ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو موقع ملے, کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. اور آج جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے نیا طریقہ, یہ جو آپ نے یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے, یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے, اس کی بھی آپ نے حدیں پار کر دی ہے. خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا, نہ کسی کی چادر چھوڑی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے؟ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا, یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا. پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. بہت بڑے ہمارے مسائل. میری اولاد مجھ سے پوچھتی ہے, میری بس کرو, یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. میں خاتون ہوں, احترام کرو, بیٹھو. بڑے خواتین کا احترام سکھا رہے تھے, بیٹھو اور سنو. اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے. اس ملک کو روزگار چاہیے, اس ملک کو بجلی چاہیے, اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے, اس ملک کی ماں کو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے. وہ آپ کے عمر رسیدہ چیئرمین کی آسائشوں پہ نہیں بات کرنی ہمیں. اس کو فریج دے دو, اس کو مرغی دے دو, اس کو اے سی دے دو, اس کو ٹریڈ مل دے دو, اس کو ہر چیز دے دو, اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو. اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مارو. آپ نے حد کر دی ہے ڈھٹائی کی. آپ لوگ یہ جو بینر, یہ جو آپ تھوبڑے لے کر آ جاتے ہیں روز یہاں پر, یہ جو روز آپ لوگ لے کر آ جاتے ہیں, اس سے پاکستان کی غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس سے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے, اس سے ہمارے نوجوان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے. تعلیم چاہیے ہمارے بچوں کو. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزگار پہ بات کیوں نہیں کرتے. یہ ایک ہی آدمی کے پیچھے پورا پاکستان کیوں خوار کرتے یہ لوگ. آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. آج کشمیر پہ بات ہو رہی تھی, آپ یہاں پہ جمگٹا بنا کے کھڑے ہو گئے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے قانون سازی کل کی ہے. ارے بھائی, کل قرارداد آئی ہے فلسطین پر, پرسوں. یا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یا قرارداد پیش کر رہے ہیں. اور قرارداد کے اوپر بھی آپ کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے. مجھے آپ کی تکلیف پتہ ہے فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر نے ایک زائنسٹ کو لندن میں سپورٹ کیا تھا میئر الیکشن کے لیے. تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے ان باتوں کو. But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. وہ صادق جاوید بتا چکا ہے, وہ اپنے کنسرن ایکسپریس کر چکا ہے اپنے الیکشن میں, اور وہ اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر چکا ہے when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. وہ بتا چکا ہے. So sir, with all honesty, یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے. پیپلز پارٹی اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, جو عوام کو درپیش مسائل ہیں, اس کو لے کر پریشان ہے. ورنہ ہم بھی کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتے. ہم صرف پاکستان کی سالمیت, پاکستان میں استحکام, پاکستان میں امن کے حامی ہیں, اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے. ہم آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرض نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں خود غرض, اور
हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं। और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के, और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो वो इजराइल का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहां पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की और आपने उसे वेलकम किया। I say it's a shame that you have done this। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया। लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी कि 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई। अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं। अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं। आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप उन चीजों की मजम्मत करते। जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नैब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं। आप सेलेक्टिव बात करते हैं। आप जिस तरह की सिलेक्टेड हुकूमत है, उसी तरह के सिलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की सिलेक्टेड अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो हम एजेंट कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिल रहेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा अपना व्यू कर बात करें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, इस तरह नहीं होगा। वालों ने भी तौबा कर ली। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए, क्योंकि आपसे पनाह मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप लोगों की जो सोच है वो इंतशार पसंदाना है, नफरत आमेज है, और आप लोग इस मुल्क में जो बीज एक डिक्टेटर ने बोए थे नफरत के, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। जिस डिक्टेटर ने इस मुल्क को मजहब के नाम पे तकसीम किया, फिरके के नाम पे तकसीम किया, जबान के नाम पे तकसीम किया, आप उसी डिक्टेटर के पैरोकार हैं। आप उसी का मैसेज आगे ले जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में
नफरत को परवान चढ़ाया है। आपको चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए तो आप सब्र का पैगाम देते, लेकिन मैंने पहली दफा देखा ऐसी हुकूमत जो अपने ही बजट में अपनी ही बजट बुक्स ऑपोजिशन पे फेंक रही थी। ये पहली मर्तबा आप ही की हुकूमत जब थी सिलेक्टेड, उस वक्त ये मैंने देखा, और कभी नहीं देखा था कि हुकूमत ही ऑपोजिशन को किताबें मार रही हो। हमने वो मनाजिर भी इस असेंबली में देखे, अफसोसनाक मनाजिर। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे, जो ज्यादा शोर मचाते थे, और जो बेचारे इज्जतदार थे वो कोना पकड़ के बैठ जाते थे क्योंकि उन्होंने घर से ये तरबियत हासिल नहीं की थी। लेकिन आपका लीडर उनको कहता था कि गाली दो, जितनी बड़ी गाली दोगे उतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी, ये आपका, और उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। आपके अंदर की कहानियां आप सारी पता है हमें, ऐसी बात नहीं है, सारी कहानियां अंदर की बाहर आ चुकी हैं। लेकिन उस वक्त अभी भी आप, बहुत टाइम है, वैसे हमें इतनी गंदी कहानियां सुननी भी नहीं है, लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से बाहर नहीं बैठी हैं, हमारी औलादें अयाशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो भी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी, अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। आप इन उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? उसे एक शख्स के लिए आप सारे उसूल भूल जाते हैं। भाई उसके बच्चे भी यहाँ नहीं है, उसका यहाँ कोई, देखिए सबसे बड़ा सरमाया, आप दिल पे हाथ रख के बोले, आपकी औलाद होता है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं उतारते तो आप दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां मांगते हैं, दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिसने इस तरह की सियासत की है, पहले भी की थी, लोगों ने कहा था कि फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, हथियार लो, मतलब जितनी नफरत फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, और जिसने ये मनूसियत फैलाई है उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने ये देखा है, माजी में देखा है, और हम आज भी देख रहे हैं। एक खोखले नारे, ये खोखले नारे, अब आप भी इसमें यकीन नहीं रखते। अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी चाहिए। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार बार या नारे लगाते हैं, जो खड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर दूसरा फितना जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों फितना जिंदाबाद? ये मुल्क जिंदाबाद, इस मुल्क का अमन जिंदाबाद, इस मुल्क की खुशहाली जिंदाबाद, इस मुल्क का नौजवान जिंदाबाद, इस मुल्क का हर फर्द जिंदाबाद, इस मुल्क की बेटी जिंदाबाद, इस मुल्क का बेटा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।